This Muslim challenged the Christian preacher by asking if he ever read the Quran. She claims that the Islam extremist groups like Hamas and ISIS are going against what the Quran teaches. See how the conversation unfolds. Okay, I'm a Muslim, All right. and I'm completely against ISIS and any group that does these things. I don't know if you've ever read the Quran or if you've ever been exposed to it, but the people that act in this way are going against everything that our holy book says. Well, they're interpreting it differently than you, No, they're not. so that you don't. I mean, they are interpreting it differently, but they're interpreting it the wrong way. Because the Quran does not say, go kill all these people. Actually, it does. No, it doesn't. Surah 9. Have you read it? Yes, ma'am. In fact, I have it in my back pocket if you'd like me to read it, because I had a feeling this might come up today. So I brought some verses from the Quran that actually do talk about this. Now, I understand. You think there's an explanation. I get that, and I'm grateful for that. But there are verses like this. Surah 9:29, fight those who believe not in Allah, nor the last day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, but impose jizya, which is submission, over the infidels. Surah number 5, the punishment of those who wage war against Allah and His Messenger and strive to make mischief in the land, which is this is the verse of ISIS that they use because we're making mischief in the land, they believe. And so you can disgrace them and slaughter them. So I get that you would expect. You see that right there? That is the mark of the beast. All you have to do is navigate to literally the Vatican Library, where they have the oldest known copy. It dates back to 400 AD, where Revelation chapter 13, the very last verses, talking about the mark being 666. Actually, that's what it looks like right there in the Greek, the original Greek. All right, so here's what I'm going to do. I'm going to take what we saw in the original manuscript, and I'm going to digitize it, make it look way higher quality, but I'm also going to modify it a little bit, because when you look at the original mark of the beast from the original manuscript in Greek, and you just play with it a little bit like I'm doing right here, all right, you just flip these little characters a little bit. Actually, the first and last stay the same, but you kind of flip the middle. Look what it becomes. And can you see what this is really talking about? And do you see it? You can see it, right? Please tell me you can see it. And where are they wearing it? On their foreheads. Does Muhammad give you eternal life? No, God gives us. Okay, so watch this. Watch what Jesus says. So verse 24, the Jews are asking. They say, so the Jews gathered around him and said to him, how long will you keep us in suspense? If you are the Christ, then tell us plainly. Tell us straight up. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me. But you do not believe me because you are not among my sheep. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. What does this mean? They follow me, right? His sheep follow him. What does that mean? I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. In the mighty name of Jesus Christ, everything not of Jesus Christ in her system, I say out! Rise up, you are healed in Jesus' name. Where the power of God is present, healing is just like breathing. Was pronounced dead until she prayed. Jesus came because he loves each and every person. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Religious hypocrites. Yeah, religious hypocrites. Palestinian. Jesus is from Palestine. Who killed him? The ancestors of the Zionists today. They put him on the cross.
are committing genocide against Palestinians today. Who killed Jesus? Tell the world. The religious hypocrites killed Jesus. Jesus came and he said, love your enemies. Pray for those who reproach you. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. He said, don't be overcome by evil, but overcome evil with good. Leg be whole now. I command all lingering pain to get out right now in Jesus' mighty name. Be completely healed in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Continued work. It's what? A blessing. Yeah. Amen. What are you coming at me for? What are you coming at me for? Do it. What are you coming at me? Do it. नौ मार्च को इजराइल ने गाजा की सीमाओं की घेराबंदी की थी, जिसकी वजह से गाजा में राशन जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति होना पूरी तरह से बंद हो चुकी है। गाजा से आ रही फुटेजेस में साफ देखा जा सकता है कि गाजा के स्थानीय लोग पूरी दुनिया के लोगों से अपने बच्चों की जान की भीख मांग रहे हैं और युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं। अब गाजा के अंदर खाने पीने और जरूरी सर्वाइवल की चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब हालात ये हैं कि छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं और हमास जैसा आतंकी संगठन अभी भी पीछे नहीं हट रहा है। गौरतलब है कि हमास ने जिस युद्ध की शुरुआत की थी और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बैठे बिठाए हमला किया था और जिसके बाद पूरी दुनिया के मुस्लिम्स के एक बड़े हिस्से ने इनकी सराहना भी की थी। अब इजराइल की जवाबी मुहिम पर वही मुस्लिम समाज चुप बैठा है और जिसका अंजाम मासूम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुस्लिम समाज को इससे सीख लेनी चाहिए कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता और हमेशा अपने फेवर में भी नहीं होता, भले ही वो आपके मजहब की मान्यताओं के मुताबिक क्यों ना हो। ये रोते बिलखते चेहरे, ये सिसकियां, ये चीख चिल्लाहट, जिनमें बेबसी का दर्द साफ नजर आ रहा है। जिस परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बीत रही थी वो बिखर गया है। किसी की माँ ने, किसी के बेटे ने, किसी के भाई तो किसी के पति ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला तो कर दिया, लेकिन जवाबी कार्रवाई के साथ जो जंग छिड़ी उसने किस कदर तबाही मचाई है, ये डरे हुए हताश चेहरे बयां कर रहे हैं। वहीं गाजा में यूएन के एक स्कूल में कई फिलिस्तीन परिवार जान बचाने के लिए शरण लिए हुए हैं। 13 साल की बच्ची ने कैमरा देखा तो खुद ही वहाँ के हालात दिखाए। अच्छे खासे घर को छोड़कर स्कूल की 4 दीवारों में छिपे परिवारों के पास पानी जैसी बुनियादी चीजें भी मुश्किल हैं। Why the Christians supporting Israel or supporting the Judaism so much? The Christians that follow the Bible, that follow Jesus, that follow our Torah and the New Testament, it says that whoever blesses Israel will be blessed, whoever curses Israel will be cursed, and they know that the Messiah, their Savior, came from the Jewish people. It's not us going into a Gentile faith. It's Gentiles being brought into the fold of the people of Israel because of the promises of God to the entire world. The promise to Abraham, when God said, I will make you a great nation, and through your seed, all the peoples will be blessed. Not just the Jewish people. All the people will be blessed. They understand that that promise is fulfilled in Yeshua. Why else would billions of Christians around the world and throughout history believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob? Why? Why would they give up idol worship? Why would they give up being liked and loved by popular culture? Why would they do that? Because of Jesus the Jew from Nazareth. अपने अपने मन को खिला लीजिए, आज ही यीशु मसीह को स्वीकार करिए। आपके गांव में जहां भी प्रार्थना होता है वहां पर आप जाइए, यीशु ही आपको बचाएगा। यीशु हर समस्या से आपको बाहर निकालेगा। यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच आप स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु ही आपको बचाएगा और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है, परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य बनाया है। बाइबल बताती है, मैं सारे प्राणियों का
परमेश्वर यहोवा हूँ और मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। अपने अपने पापों से मन फिरा लीजिए, अपने अपने पापों से मन फिरा लीजिए, अपने अपने पापों से मन फिरा लीजिए। स्वर्ग का राज निकट आ गया है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह आने वाले हैं बादलों पर। बाइबल बताती है जैसे यीशु मसीह ऊपर चले गए, 2 स्वर्गदूत नीचे उतर के आए और बोलने लगे, हे गलीली लोगों, खड़े खड़े तुम स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास है। India, known for running the largest food security program in the world, has been put under the serious category and is ranked 105th out of 127 countries in the 2024 Global Hunger Index. The GHI is a peer-reviewed annual report jointly published by Concern Worldwide and Wealth Hunger Hilfer. GHI score is calculated on a 100-point scale, reflecting the severity of hunger, where 0 is the best possible score and 100 is the worst. India's South Asian neighbors such as Bangladesh, Nepal and Sri Lanka showed better GHI scores and were listed under the moderate category. Now, while index is debatable, 3 out of 4 indicators are related to the health of children and cannot be representative of the entire population. Last year, the 4th and most important indicator, proportion of undernourished population, was based on an opinion poll conducted on a very small sample size of 3,000, which India outrightly rejected. ये देखिए, जिस तरफ भी नजर घुमाएंगे हर ओर बस धूल का गुबार ही दिखेगा। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम क्या बदला, हर ओर धूल का गुबार ही गुबार छा गया। राजस्थान के बीकानेर और चूरू सहित प्रदेश के दूसरे हिस्सों में तेज आंधी आई और पूरा आसमान धूल से ही भर गया। भयंकर धूल भरी आंधी के कारण पूरा शहर अंधेरे के आगोश में आ गया। धूल भरी आंधी इतनी तेज थी कि दिन में ही यहाँ रात सी हो गई। काली पीली आंधी ने यहाँ वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही प्रदेश के कई शहरों को इस आंधी ने अपने आगोश में ले लिया। आंधी के बाद बरसात भी हुई और आसमान पर उड़ती धूल के कारण यहाँ मिट्टी की बारिश भी होने लगी। खैर, इससे जनजीवन भी बहुत प्रभावित हुआ और कई पेड़ पौधे, बिजली के पोल और टीन शेड जैसी चीजों को नुकसान भी हुआ है। धूल भरी आंधी का मंजर वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे नीले आसमान में अचानक धूल भरी आंधी उठी और पूरा इलाका धूल का गुबार सा दिखने लगा।
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। इससे अगले 3 दिन तक आंधी चल सकती है और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। पूरे गोबरे आगे कर ले। अरे बट बंद करो खटर छट यार, जल्दी आओ ना, बाहर क्या कर रहे हो? बहुत ही सामर्थ्य होगी और यहां तक कि वह विपत्तियों को भी ला सकेंगे। तो उम्मीद है अब शायद आप इस बात को समझे होंगे कि क्यों ये सारी दुनिया हम मसीहों को इतनी नफरत करेगी। तो अब हमारे लिए इन सारी बातों को समझना थोड़ा आसान हो चुका है। देखिए अब मतलब आज के समय में मसीहत के ऊपर अत्याचार या परसिक्यूशन है धीरे धीरे बढ़ रहा है और कई जगहों पर धन्य हो तुम जब लोग धिक्कारें, नकारें और अपमानित करें और मेरे कारण तुम्हें बुरा कहें। जब ऐसा हो तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके पूर्वजों ने भी भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया। मोदी जी भी कहते हैं भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मगर बोलता तो है, करता तो कुछ और है। हम ईसाई नहीं बने, हम इंसान बन चुके हैं। मैं काफी बार 10 कावड़ भी ला चुका हूँ हरिद्वार से, नंगे पांव उठा करके 10 कावड़ मैंने की हुई हैं। तो मेरी भोलेनाथ ने सुनी नहीं। तो मुझे मेरी बुआ ने बताया कि आप मसीह के पास एक बार प्रभु के पास जाओ, चर्च में जाओ, वहाँ पे पादरी जी होंगे, वहाँ पे जाके प्रार्थना कराओ। तो मैंने जैसे वहाँ प्रार्थना कराई। नाम सिर्फ सुरेश है। अभी आप हिंदू हैं या फिर ईसाई बन चुके हैं? ईसाई बन चुका हूँ। भारत में पहले कहा गया मुसलमानों को टाइट कर दिया गया है और फिर कहा गया कि हिंदू खतरे में है, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन हमारे देश में जितने अल्पसंख्यक हैं वे लोग सड़कों पर हैं, वे लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का रास्ता तैयार कर लिए हैं। ये तस्वीरें जो हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए, हजारों की संख्या में ये लोग दिल्ली एनसीआर से आए हुए हैं और यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो आपके हाथ में पोस्टर है, संविधान में रखो आस्था, मत चुनो गलत रास्ता। बताइए, जब पैसे देकर के ईसाई बनाया जाएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। किसने कहा आपको पैसे देके हम लोग ईसाई बनाया जा रहा? हम लोगों ने बिल्कुल पैसे नहीं लिया। आपको ये किसने बताया कि हम लोगों ने पैसे देके हमें आस्था बदल रहे हैं? तमाम पादरी जेल में बंद है, उनके ऊपर आरोप है पैसे देकर के हिंदुओं को ईसाई धर्म कबूल करवा रहे हैं। सो ये ऐसा है, तो अब धारणा लोगों ने बना लिया, लेकिन ये सच नहीं है पूरी तरीके से। हम लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह पे, हमारा जीवन बदला है। हम लोगों को कोई पैसा नहीं दिया गया। क्या जीवन बदला है? हमारा जीवन जो पहले पाप में हमारा जीवन था, उस पाप को मैंने जाना और वो पाप से परमेश्वर ने मुझे मुक्त किया है। कौन कौन से पाप की गलती जो लोग जीवन में हम लोग गुनाह करते हैं। संसार के अंदर आप देखोगे लोग गलत विचार रखते हैं, दूसरे के प्रति गलत करते हैं, दूसरे के प्रति। सर 1 मिनट में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए सर, मैं पहले मूर्ति पूजा पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। मैं किसी भगवान की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के धर्म के बारे में गलत बोल रहा हूँ। देखिए मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। ये देखिए मेरे पाँव पे अभी तक चोट लगी हुई है। ये देखिए सर, डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि सुभाष जी आपका ये पाँव कटेगा। मैं काफ़ी बार 10 कावड़ भी ला चुका हूँ हरिद्वार से, नंगे पाँव उठा करके 10 कावड़ मैंने की हुई हैं। तो मेरी भोलेनाथ ने सुनी नहीं। तो मुझे मेरी बुआ ने बताया कि आप मसीह के पास एक बार प्रभु के पास जाओ, चर्च में जाओ, वहाँ पे पादरी जी होंगे, वहाँ पे जाके प्रार्थना कराओ। तो मैंने जैसे वहाँ प्रार्थना कराई,
तो मैंने दूसरे दिन अपने पाँव का चेकअप कराया तो डॉक्टर ने ये बोल दिया आपका पाँव नहीं कटेगा, आप एकदम ठीक हैं। और रही पैसे की बात कि लोगों का पैसे दे करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए सर। हमें प्रभु खुद पे खुद प्रभु ने इतना दे रखा है, हमारी जिंदगी बदल रही है। हम दूसरों को पैसे दे सकते हैं, हमें प्रभु ने इतना दे रखा है। और एक बात बताइए, हमारी जिंदगी बदल रखी है। प्रभु ईसा मसीह किसी के धर्म को नहीं बदलता, बल्कि वो हमारे जीवन को बदलता है। They know not what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. सही बोल रहे हैं और क्या, हालेलुया। आगे आगे आगे, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा जीवन बदला है, मेरा जीवन बदला है, जब भी मैं बोल रहा हूँ छाती ठोक के। मेरा जीवन बदला है। कैसे बदल गया जीवन? आप मेरे जीवन में हो, आपने मेरा जीवन देखा है किस तरीके से मैं रहा हूँ अपनी कॉलोनी में, किस तरीके से मैंने अपना बचपन बिताया है। आपने देखा है मेरा बचपन? नहीं देखा है। मैंने अपना बचपन जिस तरीके से बिताया है वो मैं जानता हूँ और मेरा परिवार जानता है। और जब से मैं परमेश्वर में आया हूँ, मैं कैसा हूँ मैं जानता हूँ। अब मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ
कि परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। 20 साल हो गए मुझे अपना बचपन बिता दे 20 सालों में मैंने कुछ नहीं सीखा है। परमेश्वर में आए हुए मेरे को 4 साल हुए हैं। 2 साल मेरे नशे में थे, पर मात्र 1 साल में मैं ऐसा बदल गया हूँ। 3 साल तो मेरे ऐसे ही जानने में निकल गए। कहते हैं कि मेरे नाम लोग कहते हैं कि जो दारू पीता है वो जब जाता है चर्च में शराब छूट जाता है। वहाँ पर ऐसा क्या कुछ कहा जाता है? जीने का तरीका सिखाया जाता है। अभी मेरे अंदर के घुटके के दाग मिटे नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है ना, मैं जानता हूँ, मैंने सारे ऐप करे और मैं इतना बदल चुका हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। पूरा नाम? खाली सुरेश, उसके आगे कुछ नहीं लगाना चाहता मैं। क्यों नहीं लगाना चाहता? सुरेश ये मेरे माँ बाप ने और आगे रखा था, पर अब नहीं रखना चाहता। क्यों? मेरा नाम सिर्फ सुरेश है। अभी आप हिंदू हैं या फिर ईसाई बन चुके हैं? ईसाई बन चुका हूँ। बन चुके ईसाई? कहने की क्या बात है इसमें? मैं ईसाई हूँ, कहने की क्या बात है? क्या पहचान ईसाई की? क्यों? यीशु नाम ही पहचान हाँ? यीशु नाम ही पहचान है। आप सब लोग ईसाई बन चुके हैं? नहीं, आपने क्या बताया कि भाई आपने पैसा लेके बनाया। अब ये बताइए यहाँ पर कितने बंदे आए हुए हैं, बाहर स्टेज से आदमी आया हुआ है, क्या सभी बेईमान है? बोलिए, कुछ बोलिए, आप भी बोलिए। हम ईसाई नहीं, हम इंसान बन चुके हैं। हम ईसाई नहीं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम ईसाई नहीं बने, हम इंसान बन चुके हैं। इंसान बन चुके हैं। संसार में थे, जब हम इस संसार में थे तो हमें पता नहीं था हम जाने कहाँ है। लेकिन जब हमें मालूम पड़ा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसने हमें बचाया है। तब हम यहाँ पे जब यीशु मसीह जाना हमने विश्वास करा। हम जब मेरा जीवन में अगर देखूँ, मेरे जीवन में जब मैं हिंदू था, जब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी मूर्ति पूजा की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह जो उद्धार करता, जिसने संसार को बनाया। आज जब लोग बोलते हैं कि तुम यीशु मसीह विश्वास करते हो, ईसाई बन गए, लेकिन आज हम ईसाई नहीं बने, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं जिसने संसार को बनाया। हम घर वापसी में आए उसके, हम इंसान बन चुके। जब हिंदू सेना वाले कह रहे हैं, सुनिए, हिंदू सेना वाले कह रहे हैं आप हिंदू धर्म में आ जाइए, फिर से घर वापसी हो जाएगी आपकी। आप ये बताइए मुझे, जब मैं हिंदू धर्म में था, जब मैं बात करेंगे आराम से, आप मुझे बताइए, जब मैं हिंदू धर्म में था, मैं नशा करता था, दारू पीता था, लड़ाई झगड़ा करता था, नशे पड़े तब तो नहीं आते थे। अरे उसमें हिंदू धर्म क्या गुनाह था उसमें साहब? बताइए, आप मुझे बताइए, जब मैं आज मेरा जीवन बदल गया है, आज मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, आप तो नहीं आ रहे हो मेरे पास। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा, सचेत हो जाओ। हिंदू राष्ट्र बने वो अलग बात है, लेकिन संसार को किसने बनाया उस चीज को देखिए ना। किसने बनाया संसार को? आप मुझे बताइए, आप जो हिंदू है तो आप क्या, मुझे नहीं पता आपका धर्म क्या है, लेकिन आपका जीवन बताइए क्या है। लेकिन जैसे आज मैं अपने जीवन जो बिता रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं इसमें सफल हूँ और मुझे पता है कि मेरे जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ मैं, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो और इस संसार भारत का कानून भी ये कहता है कि तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। ये हिंदू मुसलमान हर चीज़ में है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप जिसमें विश्वास करो। अगर आपका जीवन जिसमें बदलता है, आप उसमें विश्वास करो। ये हमारे ऊपर क्यों बोले जाते हैं? सिर्फ एक ही ईसाई को लेकर टारगेट क्यों करते हो? अरे हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा साहब, हिंदू कमजोर हो रहा है। उनसे क्यों नहीं बोलते? जो नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनसे तो नहीं बोलते? ईसाई लड़ाई नहीं करते हैं। मेरी बात सुनो, देखो हिंदू मुसलमान किसने कर रखा है? मेरी बात सुनो, हिंदू मुसलमान किसने कर रखा है? ये आप लोगों ने कर रखा है, हम लोगों ने कर रखा। सिर्फ परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, हिंदू मुस्लिम किसी ने नहीं बनाया। रही आप, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, तिरंगे में 3 रंग किस लिए दिए हैं? हमारे तिरंगे में 3 रंग किस लिए हैं, ये बताओ आप मुझे। अलग अलग जो रंग है, प्रतीक है, सौहार्द का, शांति का, शांति का प्रतीक। हम चाहते हैं शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक हो। लेकिन उसमें ये भी देखा जाता है ना, भगवा रंग है, हरा रंग है, सफेद रंग है। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए आप कहना क्या चाहते हैं, आप ये बताइए, आप अपनी बात रखिए। आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं यहाँ जितनी भी जनता आ रही है सबको पैसे खिला रखे सबको, ये कहना चाह रहे हैं? तमाम लोग आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, तमाम पादरी जेलों में बंद हैं। मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या ये सच है पैसे लेकर के लोग धर्म चेंज कर रहे हैं? सच नहीं है, ये गलत है। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, झूठा आरोप है। हाँ, बिल्कुल झूठा आरोप है।
बिल्कुल झूठा आरोप है। लेकिन तमाम पादरी जेल में बंद हैं भी। तमाम पादरी जेल में बंद है क्योंकि संगठन जो हिंदुओं का है वो जोर पकड़ रहा है और वो अपनी भीड़ को इकट्ठा करके उन लोगों पे अत्याचार करना चाह रहे हैं। जो मेरे जीवन में घटा है यदि मैं उसको खुल्लम तरीके से बताना चाहता हूँ तो आपको उसमें परेशानी क्या है? अगर आप बात करते हैं तो बातों से बात हल करें। अगर आप जोर दिखा के किसी को पैसे खिला के किसी को जेल में बंद करवा देते हैं, ये कौन सी क्या बोलते हैं अहिंसा हुई? ये सरासर हिंसा हुई। आज वही हो रहा है और ऐसी जगहों पे जहाँ पे पुलिस का पहुँचना या फिर जहाँ पे कानून का पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे ये काम हो रहे हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली में जल्द से जल्द पुलिस पहुँच जाती है। आज बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, बात है इंसान के अंदर जो हिंसा है वो उसको शैतान इस तरीके से भड़काता है कि भाई भाई का भी दुश्मन है। ये बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों को दिक्कत है या मुस्लिम लोगों को दिक्कत है। यहाँ पे हिंदू हिंदू से खुश नहीं है। अगर आप अपने भाई पड़ोसी से खुश नहीं है, आप तो दूसरे समुदाय से तो और खुश नहीं होगे। आज वही मुद्दा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। किस प्रकार का बड़ा आरोप है? अगर आप अपने पड़ोसी को बदनाम कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू भाई हमारे इतने अच्छे प्रेमी भाई हैं। हम हिंदू लोगों से क्या है आपको पता है धर्म संसद यहीं पर लगाई जाती है और यहीं से मारने काटने की बात की जाती है। आपको मालूम होगा कि वही धर्म संसद जो आप बता रहे हो हमारे जो संविधान है उसके खिलाफ अगर जाता है तो ये संविधान के खिलाफ है। हम कानून को भी पहले रखना चाहते हैं। कानून में हर धर्म अपने आप को खुल्लम खुल्ला प्रचार कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कानून को आप लाके बताएं कि यहाँ ऐसा लिखा है, ये मत करो, हम करना बंद कर देंगे। अरे सर, लव जिहाद में कितनी गिरफ्तारियां हो गई। आप लव जिहाद को लाकर मेरे मुंह से कुछ और मत बुलवाइए। हमें जितना बताना था हमने बता दिया। कानून तो अधिकार दे रहा है, आप प्यार कीजिए, किसी की जात किसी धर्म के है प्यार कीजिए, लेकिन नहीं, आप संविधान की बात कर रहे हैं। लगता है भारत में संविधान लागू है पूरी तरीके से। अगर नहीं लागू है तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। हम वही कर रहे हैं। धन्यवाद। ओके। देखिए तमाम लोग हैं और सुनिए, इधर आइए। तो एक बात बताइए, आज यहाँ पर आए हैं तो दिन भर पूरा दिन बर्बाद चला गया, तो कैसे भरपाई होगी इसकी? क्या भरपाई कैसे होगी? कमाते कहीं जाते 2-4-500 रुपये मिलता। प्रभु देता है, ऊपर वाला भगवान सब दे देगा। क्या बात करते हैं सर? आप दे दो। हम तो आए हैं आपकी समस्या सुनने के लिए। क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम? आप दे दो। प्रभु नहीं देगा तो आप दे दो। लेकिन कहते हैं भगवान तो एक है। तो भगवान एक ही, हम क्या अलग बता रहे हैं? लेकिन अगर भगवान एक है सर, तो सवाल ये भी है ना कि हिंदू धर्म में रहिए, ईसाई में रहिए, मुसलमान में रहिए, पूजिए उसी को। सुनिए, एक मिनट, एक बात बताइए, आप हनुमान को मानते हैं? नहीं, मैं किसको मानता हूँ किसको नहीं मानता हूँ, अलग चीज है। देखिए, नहीं, मैं आपसे या तो आप हमारी बात का जवाब दो। हाँ, मैं मानता हूँ। जितने भी देवी देवता हैं मैं सबको मानता हूँ। सबको मानता हूँ। सबसे ऊपर इशू है, मैं सबसे ऊपर इशू। जेल हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। कोई बात नहीं, करवा देना। सही बोल रहे भाई साहब। कहने की क्या बात है भाई इसमें? इसमें कहने की कोई इशू है। राइट, सबसे ऊपर। इंग्लिश में बोलना नहीं आता पर हिंदी में बोलूंगा। सर, आपको भी लगता है? यहाँ पर क्यों आए थे? क्या मान्यता थी, क्या मांग थी? ये क्रिश्चियंस का सपोर्ट के लिए आए। सपोर्ट कर? कहाँ से आए हैं? मैं केरला से। केरल से आए हुए हैं? जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। केरला से बिलोंग करता हूँ, केरला से। क्या लगता है जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश हो आपका, चाहे छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, सब जगह अत्याचार किया जा रहा है, क्या लग रहा है इस आंदोलन के बाद अत्याचार खत्म हो जाएगा? नहीं, ये सिर्फ सरकार को हमें बताना है, सिर्फ निवेदन देना है, इसके लिए। मोदी जी भी कहते हैं भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मगर बोलता तो है, करता तो कुछ और है। बिल्कुल, बोलता है करता नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा दिया जाता है, बातें बड़ी बड़ी की जाती है। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन जो ईसाई कौम, ईसाई समुदाय है वो आज सड़कों पर है, जंतर मंतर है, संसद सामने सुबह से ही अब तक आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ तक नहीं आया और बहुत ही शांति तरीके से इन लोगों ने अपने आंदोलन को अंजाम दिया, अपने आंदोलन को पूरा किया। लेकिन आपको याद दिला दूं, ये वही जगह है, एक बार दिखा दीजिए, ये वही जगह है जहां पर धर्म संसद लगाई जाती है और मारने काटने की बात कही जाती है और कहा जाता है भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और सभी धर्मों के लोगों को गालियां दी जाती हैं। लेकिन जो ईसाई समाज है, ये लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर
अपने आंदोलन को कर रहे हैं और सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं जितने भी पादरी जेलों में बंद हैं उन सभी पादरियों को रिहा कर दिया जाए, सभी फादर को रिहा कर दिया जाए और ये लोग पैसे देकर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सहयोगी कमर के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।